Namaskar, good morning. In the last class, we discussed regarding the architecture of the block diagram and architecture of 8051, microcontroller 8051. Today, we will start with the special function registers of 8051 and the memory organization of 8051. First, we deal with the memory organization. No doubt, we also discussed the same thing in the previous lecture also. As we know, the program memory, and there are two memory. One is the program memory, another is the data memory. This is nothing but your RAM, and this is nothing but your ROM memory. Program memory कह लो या ROM memory कह लो, data memory कह लो या RAM कह लीजिए. As we know that program memory, internal program memory is 4 kilobyte, where internal data memory is 128 byte, right? Now this program memory as well as this data memory, they can be extended externally. अगर कोई सिस्टम हमें चाहिए जिसमें कि इंटरनल 4 किलो और 128 बाइट से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा सकते हैं. अब एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं तो कितनी लगा सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 64 किलो तक, इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं 64 किलो तक, राइट? दैट मीन दोनों मेमोरीज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 64 किलो. अब इसमें दो स्कीम्स हैं. इसके अंदर क्या है कि भी आप चाहे तो जो 4 किलो आपके पास है, ये 4 किलो आप एज इट इज रखें और साथ में एक्सटर्नली 60 किलो हम एक्सटर्नल और लगा सकते हैं. दैट मीन्स टोटल मिला करके वी कैन क्रिएट 64 अप टू 64 किलो मेमोरी हम क्रिएट कर सकते हैं यहां पर. या फिर इस इंटरनल को सारी को हटा करके हम एक्सटर्नल 64 किलो, टोटल 64 किलो हम यहां पर इंटरफेस कर सकते हैं, राइट? अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, देन we have the EA pin, the external access. For this it should be 1 and for this it should be 0. That means अगर हम एक्सटर्नल कर रहे हैं सारी की सारी, तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा है. इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो है इंटरनल 4 किलो को नेग्लेक्ट करेगा और एक्सटर्नल इसको सारी को एक्सेस करेगा. अगर 4 किलो में काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात, अलग लगा रहे देन आल्सो, उस केस में हम हमारा जो EA पिन होगा, EA बार पिन जो होगा, दैट विल बी एट लॉजिक 1. यहां पर क्या होगा? यहां पर या तो आप 128 बाइट एज इट इज यूज करेंगे, या फिर हम इसको अगर एक्सटेंड करना है देन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 64 किलो, राइट? उस केस में अगर आप 64 किलो ले रहे हैं तो उस केस में आपने इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. दैट मीन्स ऑल टुगेदर 64 किलो ये होगी, राइट? व्हेन यू आर एक्सेसिंग द एक्सटर्नल मेमोरीज, इन दैट केस you required the bus is you require the address bus as well as the data bus. For both these memory, both these external memories, this one or this one, right? We must have the address lines and the data lines, and these address lines and the data lines, that is provided by the these pins, they are of port P2, and these pins they are of port P0. So जो आयो पोर्ट थे, उन आयो पोर्ट के ये दोनों पोर्ट उस टाइम एड्रेस और बस डाटा बस की तरह काम करेंगे. इनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए ALE सिग्नल का हम यूज करेंगे, जैसा कि 8085 और 8086 में करते थे. So these are required, address and data bus. Apart from that, we required the control signals, that is for this particular memory as well as for this particular memory, ROM memory, program memory, we use PSEN bar signal. This PSEN bar signal will be connected to the output enable of this, and it behaves as a read signal for external ROM or external program memory, right?
Whereas here, if you require this, you are accessing this, then this will be the address in the data bus, and for this we require the read and the write signal. So this read and the write signal, they are given by the PC P3.6 and P3.7 pin of the IO port P3, right? ये है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर. नाउ जो प्रोग्राम मेमोरी है इंटरनल 4 किलो, उस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर हमारे परमानेंट प्रोग्राम्स जो है एम्बेडेड सिस्टम के लिए या हमारे माइक्रो कंट्रोलर के, दे आर बीइंग स्टोर्ड देयर. वेयर एज उनके लिए जो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, जो डाटा हम यूज करते हैं, द डाटा इज अवेलेबल इन द रैम मेमोरी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रैम मेमोरी. This structure is this 128 byte, this 128 byte RAM. Actually, we can divide this 128 byte into 3 portions, into 3 parts. This 128 can be divided into 3 parts. One is, we can divide it into 3 parts. This is 128 byte RAM. The RAM address starts from, you can say, starts from 00 and it goes up to 7F. That is the 128 locations. Out this 128 location, the first 32 locations, that means up to 00 से लेकर के 1F तक, this is one section, and from 1F से लेकर के up to 2F, from 20 से लेकर के 2F, next 16 locations. ये 32, ये 16 locations, that is 1F से लेकर 20 से लेकर 2F, and then from 30 से लेकर के up to 7F, right? इन 3 सेक्शन में हम इसको बांट सकते हैं. ये हमारी, this is over, and this 32 itself, you can say these 32 locations, they are termed as banks or register banks. These 16 locations, they are known as bit addressable RAM, and this is our scratch pad, या ये कह लीजिए this is our general purpose memory. General purpose memory. Now what is this actually? Actually, in microcontroller 8051, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में था, यहाँ पर भी हमें डाटा रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी. Here also we require the data registers in 8051. यहाँ पर in 8051 there are 4 sets. There are 4 sets. You can see, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 sets of 8 registers. 4 सेट होते हैं और एक सेट में 8 रजिस्टर्स होते हैं, राइट? These 8 registers, इनका नाम ABCDEHL नहीं दे रखा, इनका नाम दे रखा है, they are known as register R0, R1 up to R7. These are general purpose data register, general purpose data registers. That means the user can use these 8 registers for their general purpose operations.
अर्थमेटिकली, लॉजिकली, डाटा ट्रांसफर करने के लिए जहां कहीं भी जरूरत हो, दे कैन यूज दिस 8 bit registers. And 8051 will have such 4 sets of these registers. These registers, they exist here. These registers, they exist here. मैं इसको these exist here, और ये जो रजिस्टर्स है ये 8 रजिस्टर्स के सेट है, और एक रजिस्टर, that means it is 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, right? Then 08, 09 and so on up to 1F तक ये हमारे 32 रजिस्टर चलेंगे। इन 32 रजिस्टर्स को, जैसे एक सेट ऑफ रजिस्टर्स ये हो गया, दूसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स ये हो गया, तीसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स ये हो गया, चौथा सेट ये यहां तक ले लीजिए 1F, चौथा सेट ऑफ रजिस्टर्स ये हो गया। All set of register, they are of 8 bit, 8 registers, 8 registers, 8 registers and 8 registers, and all these registers, they are named as R0, R1, R2, R3, R7. At a time user will use or can use any one set of out of these 4 sets. किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए वो एट ए टाइम यूजर इन 8 रजिस्टर का यूज करेगा। इन 4 सेट में से किसी भी एक सेट के 8 रजिस्टर्स का वो यूज कर सकता है, और हर एक सेट के रजिस्टर्स का नाम वही है R0, R1, R2, R3, R4, R5, R7। ठीक है, तो इस टाइप के 4 सेट है, किसी भी एक सेट का वो यूज कर सकता है। उस सेट के अंदर जो रजिस्टर्स है वे रजिस्टर्स का नाम सभी का यही रहेगा। अब बात आती है कि हाउ टू यूज, ये कैसे पता चले कि कौन सा सेट यूज कर रहे हैं या कौन सा सेट ऑफ रजिस्टर्स यूज करना है। ये सेट को नाम क्या दिया है? बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। कि whether we are using बैंक 0, whether we are using बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, this कौन सा बैंक यूज कर रहा है, that is being decided by RS1 and RS0 नाम की 2 बिट है हमारे फ्लैग रजिस्टर में। 8051 के फ्लैग रजिस्टर में, जिसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी हम बोलते हैं, 8051 में एक रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है जो कि फ्लैग रजिस्टर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 85, 86। जैसे 85 में और 86 माइक्रो प्रोसेसर ऑफ फ्लैग रजिस्टर है, सिमिलरली 8051 इज आल्सो हैविंग द फ्लैग रजिस्टर, 8 बिट फ्लैग रजिस्टर्स, 8 बिट फ्लैग रजिस्टर, जिसको कि हम इन जनरल बोलते हैं PSW के नाम से जानते हैं। दैट फ्लैग रजिस्टर इज नोन एज PSW ऑफ 8051। इन PSW की जो 8 में से 2 बिट है जिनका नाम है RS1 एंड RS0, that is known as register select 1, register select 0। इनके 4 कॉम्बिनेशन है 00, 01, 10, 11। These 4 combination, they will decide whether bank 0 is selected, bank 1 is selected, bank 2 is selected, bank 3 is selected, right? So the RS0 and RS1 bits of 8051 program status word register, they will decide कि भी यूजर या सिस्टम कौन सा पर्टिकुलर बैंक यूज कर रहा है, और जो बैंक यूज कर रहा है उस बैंक के अंदर वो 8 रजिस्टर्स होंगे। उन 8 रजिस्टर को फिर वहीं R0 से लेकर R7 तक के तौर पे ही उसको जाना जाएगा। नो डाउट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिट है, इट इज R0, इट इज R1, इट इज R2, इट इज R3, इट इज R4, इट इज R5, R6, R7। These 32 locations, they can be accessed by
देन रजिस्टर नेम कि भी R0 का डाटा R7 में पहुंचाओ, या R7 का डाटा R0 में पहुंचाओ, या R7 के साथ R4 को मल्टीप्लाई करो, या R2 के साथ R4 को ऐड करो, या R1 को R5 के साथ एंड करो. So any of the operation that can be performed out of these 8 register, among these 8 register, keeping in mind कि भी इनके अंदर हम कोई भी डाटा डाल सकते हैं, they can logically और arithmetically can be performed as a general purpose data register of 8085 और 8086. कौन सा होगा? RS1 और R0 डिसाइड करेगी. Apart from accessing these bank by their register name, user can also access them by their memory address also. That means अगर मान लीजिए मैं कहता हूं R7 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मैं ये भी कह सकता हूं मेमोरी लोकेशन 07 और मेमोरी लोकेशन 01 को मल्टीप्लाई कराओ. So either of the two way I can access these registers. So this is the first set of, this is starting of this रैम मेमोरी. इसमें से पहली 32 लोकेशन को हमने 4 बैंक में बांटा है. 8 रजिस्टर हर एक बैंक में है, उनका नाम दिया गया है R0 से लेके R7 तक. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, इसमें बैंक 1 जो है, बैंक 1 बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैक भी होता है. बाय डिफॉल्ट द स्टैक रिसाइड्स इन बैंक 1. दैट मीन्स बैंक 1 की 08 से लेकर के 0F तक की जो लोकेशन है, 8 लोकेशन, दे आर यूज एज द स्टैक लोकेशन. स्टैक बाय डिफॉल्ट इसी उसको होगा. अगर इससे कहीं बाहर है तो दैट विल बी डिसाइडेड. अच्छा होगा तो अब किसी पर्टिकुलर टाइम किस लोकेशन पे है, दैट इज डिसाइडेड बाय एसपी. अच्छा, यहाँ पर 2 और रजिस्टर की बात कर ले. जब हम मेमोरी की बात कर ही रहे हैं, तो जब हमने अभी डिस्कस किया था एक्सटर्नल मेमोरी की बात की थी, एक्सटर्नल मेमोरी की बात की थी. तो एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए डाटा मेमोरी को और प्रोग्राम मेमोरी की, पहले प्रोग्राम मेमोरी की बात करें. प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस कर, प्रोग्राम मेमोरी का मतलब है जहां पर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है. प्रोग्राम लिखा हुआ है तो अगर हमारी जहां प्रोग्राम लिखा हुआ उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होती है. 85 में वो प्रोग्राम काउंटर कहलाता था, 86 में वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहलाता था. उनकी बाय डेफिनेशन क्या था कि दे होल्ड्स द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर माइक्रो प्रोसेसर हैज टू फैच द नेक्स्ट बाइट. कि उनके अंदर वो एड्रेस होगा मेमोरी का जहां से कि उन्होंने अगली बाइट फैच करनी है. वहां पर तो मेमोरी की कहीं पर भी हो सकता था, रैम रोम कहीं पर भी हो सकता था. वो यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम मेमोरी में हो सकता है. सो यहाँ पर भी वही रजिस्टर यहाँ एग्जिस्ट करता है बाय द नेम प्रोग्राम काउंटर इटसेल्फ. सो देयर एग्जिस्ट ए रजिस्टर विच इज नोन एज प्रोग्राम काउंटर. This program counter is the register which is used to points towards that memory location into the program memory. Mind it, into the program memory from where microprocessor has to fetch the next byte. जहां से कि माइक्रोप्रोसेसर ने अगली बाइट फैच करनी है. So that is done by the program counter. ठीक है. This program counter in 8051 is of 16 bit. 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है. सो 8051 में भी 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है. प्रोग्राम मेमोरी कितने होती है? 4 किलोबाइट की. अगर विद इन दैट है तो 4 किलोबाइट तक का मेमोरी को एक्सेस करेगा वो. इंटरनल के लिए करेगा 4 किलोबाइट का मतलब हो गया 000H से लेकर के 0FFFH तक. ये 4 किलोबाइट का हो गया. ये 4 किलोबाइट
के लिए नो डाउट 12 लाइन चाहिए, पर ये आल्सो इट गोज अप टू एफ एज एन एक्सटर्नल मेमोरी। तो उस एक्सटर्नल मेमोरी को भी यूज करने के लिए पीसी जो है वो 16 बिट का है। सो दैट इज प्रोग्राम काउंटर इज देयर टू गेट बाइट्स फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एंड दैट इज ऑफ 16 बिट रजिस्टर। इसी तरीके से दूसरा मेमोरी पॉइंटर जो होता था, जो 85 में भी 86 में भी है, दैट इज स्टैक पॉइंटर विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द हाईएस्ट फील्ड लोकेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहां पर भी स्टैक है, पर वो स्टैक बाय डिफॉल्ट एक ही जगह पर है, अलग से नहीं है। दैट डिफॉल्ट पोजीशन इज दैट इज फ्रॉम 08 टू FF 0F तक का है। दैट मीन्स बैंक नंबर 1 इज बाय डिफॉल्ट द स्टैक, अगर जरूरत है तो। एंड जब हम इसको पावर ऑन करते हैं, द स्टैक पॉइंटर इन 85 एंड इन 86 दैट इज आल्सो ऑफ 16 बिट, but here 8051 no doubt program counter is 16 bit but stack pointer is of 8 bit। so 8 bit का stack pointer है, और इस 8 bit के अंदर इसका जो starting address होगा that is 07H जो है इनिशियल, जब जैसे ही हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ है। तो उसके बाद 8 9 10 11 ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अगर हम इसकी कोई वैल्यू चेंज कर दें, बाय डिफॉल्ट ये है, अगर इसकी 07 के अलावा कोई है तो ये वहां पर उस एरिया में जाकर डिफाइन हो जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बी इन द इंटरनल रैम। प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम काउंटर कहीं पर भी पॉइंट कर सकता है, इंटरनल प्रोग्राम काउंट मेमोरी को भी, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को भी। बट यहां पर स्टैक पॉइंटर जो कि सिर्फ रैम में ही स्टैक हो सकती है, स्टैक पॉइंटर 8 बिट का ही होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ विद इन दैट मेमोरी लोकेशन होगा, इंटरनल मेमोरी लोकेशन। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो दैट इज the bank 1 is your stack memory and that is pointed by the stack pointer, and stack pointer of 8051 is of 8 bit, and by default it, whenever it is powered on, it points towards the, it holds the value 07। that means now it starts with loading its data from 08, that is बैंक की 0th लोकेशन से अपना डाटा लोड करना है, ये शुरू करेगा। ठीक है, now second set of memory is, that is this one, you can say this memory set which consists of 16 registers, and these registers, this memory location in this set, that is ये 20 21 22 23 up to 2F, right? This memory space is bit as well as byte addressable space। that means इस मेमोरी के अंदर अगर हम चाहें तो रजिस्टर मेमोरी लोकेशन 20 के साथ डील कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन 20 के साथ डील कर सकते हैं। we can move a data, we can say move 20,45H। that means मैं मेमोरी लोकेशन 20 पे डाटा 45 को भेज रहा हूं, so I can load the data 45 here, right? Apart from this, these memory locations, they can be bit addressable also। that means ये 20 जो memory location है, it consists of 8 bit, then these 8 bits, they will have an address starting with इसका एड्रेस 00 होगा, इसका 01 होगा, इसका 02 होगा, इसका 03 होगा, इसका 04 होगा, 05 06 07, एंड इसका 08 एड्रेस, 09 एड्रेस,
एंड अप टू डैश डैश, और ये अप टू ये जो एड्रेस हुआ, ये कितनी लोकेशन होगी, 16 लोकेशन, 16 और एक लोकेशन 8, so it will be your 7F location. So these are bit as well as byte addressable memory location. So this मेमोरी स्पेस में हम चाहें तो इंडिविजुअल को बिट को भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडिविजुअल बाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज बिट एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस। So this is your memory, and to deal with the memory we require two registers, the program counter and the stack pointer, and the register bank R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, etc. all together, right? So this is your data memory. Now apart from this, then other registers are two more general purpose data register. One is the accumulator and another is the B register. Accumulator is exactly same as that of your 8085. So all the arithmetic and logical operation, they will be performed in accumulator. Accumulator, that is of 8-bit register, general purpose data register. B is also a general purpose data register, but this B is used only in multiplication and division instruction, right? And all these registers, both these registers A and B, they are also accessed. जैसे A रजिस्टर जो है, accumulator जो है, this accumulator जो 8 बिट है, this 8 bit of the accumulator, they can be bit as well as byte addressable. जैसे मैंने बताया, ये जो रजिस्टर्स है, जो 21 रजिस्टर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें प्रोग्राम काउंटर भी आ गया, जिसमें स्टैक पॉइंटर भी आ गया, जिस ए भी accumulator ए भी आ गया, बी भी आ गया, अदर रजिस्टर्स जो अभी हम पढ़ेंगे वे भी सारे के सारे, दीज रजिस्टर्स दे आर नोन बाय देयर नेम, जैसे accumulator को ए कह रहे हैं हम, एज वेल एज दे आर आल्सो नोन बाय देयर मेमोरी लोकेशन। दैट मीन्स दिस, ये जो accumulator है, इस accumulator का एड्रेस जो है E0। इनफैक्ट क्या किया गया है, जो हमारा मेमोरी मैप है, 0 से लेकर मेमोरी लोकेशन 00 से लेकर के 7F तक, तो हमारा रैम एरिया हो गया। तो 8 बिट में से 128 लोकेशंस तो एड्रेस उनको दे दिया, 00 से लेकर 7F तक। उसके बाद 7, दैट मीन्स 80 से लेकर के 2FF तक का 8 बिट का ही, जो बाकी 128 नंबर बच गए हैं, एड्रेसेस बच गए हैं, उनमें से कुछ एड्रेसेस इन जनरल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। जैसे इसका एड्रेस E0 है। सो अगर हम चाहें तो इस accumulator को A के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको E0 के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ move A, this 45, इसका मतलब 45 जो डाटा है इसको accumulator में ट्रांसफर करो। ये इस यहाँ हैश का मतलब होता है 45 इज द डाटा, 45 इज द डाटा, दिस हैश शोज, आगे बात करेंगे, दिस हैश शोज दैट 45 इज द डाटा, सो दिस 45 इज टू बी ट्रांसफर टू accumulator. द सेम ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एज मूव E0 H, 45. सो 45 को E0 मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर करो, so that will have the same meaning, right? Next thing is, this accumulator is also bit addressable. Bit addressable में कैसे? Then this bit of it is known as E0, it is known as E1, it is known as E2 and it is known as E7. So जो bit के कंसर्न में जो इंस्ट्रक्शन होंगी, जो इंस्ट्रक्शन, no doubt the opcode will decide whether it is a bit
कंसर्न इंस्ट्रक्शन और ए बाइट कंसर्न इंस्ट्रक्शन। अगर बिट कंसर्न इंस्ट्रक्शन है, राइट, जैसे मैं कहूं SETB, मैंने कहा सेट बिट, कौन सी सेट बिट करूं? मान लीजिए मैंने कह दिया E0, तो इसका मतलब है ये जो बिट है, ये वाली बिट E0, ये रजिस्टर नहीं, क्योंकि यहां पर ये ऑपकोड अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि भाई ये बिट कंसर्न की इंस्ट्रक्शन है, बाइट की नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है दैट दिस E0 एड्रेस विल बिकम दिस पर्टिकुलर एड्रेस। अगर मैं कहूं E4, तो दिस E4, this bit will be set, right? So this way the accumulator as well as B register, they are bit as well as byte addressable register. So we had discussed B register, no doubt a general purpose register है, but ये इसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन में ही करेंगे, बाकी जगह पर इसका यूज नहीं होता है। Then comes the program status word of 8051. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, that program status word is nothing but the flag register of 8051. तो फ्लैग रजिस्टर का ही अल्टरनेट नेम जो है that is प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 81 is an 8-bit register which consists of the parity flag, which consists of the overflow flag, which consists of RS2 and RS1, right, which consists of F0, which consists of AC and which consists of CY. So कायदे से देखा जाए, it consists of the carry flag which is the same as that of carry that is of 8085 में पढ़ा है और 8086 में पढ़ा है। This is auxiliary carry, again 85 में जो पढ़ा है, 86 में जो पढ़ा है, that means it is your something like BCD carry. That means it shows when there is addition operation, if a carry generates, then that is your carry flag will set. अगर carry generate नहीं होता है तो रीसेट रहेगा। सेम अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दिस कैरी विल रिप्रेजेंट द बोरो, कि बोरो आया है या नहीं आया है। ऑक्सिलरी कैरी इज द कैरी जनरेटेड फ्रॉम द D3 बिट टू द D4 बिट, राइट। D3 बिट से D4 बिट पर कैरी जाने का मतलब है लोअर 4 निबल से अपर निबल पर जा रहा है। एक निबल क्या है? 1 निबल इज नथिंग बट ए BCD रिप्रेजेंटेशन। एक BCD नंबर जो है 4 बिट का ही होता है, जिसको निबल बोल रहे हैं हम, 4 बिट का होता है। तो लोअर 4 बिट से अपर 4 पर जा रहा है कैरी, तो दैट इज योर ऑक्सिलरी कैरी, दैट इज नथिंग बट योर BCD कैरी। RS1 एंड RS2 दे आर रजिस्टर सेलेक्ट। अभी थोड़ी देर बाद कही थी रजिस्टर सेलेक्ट, दैट मीन्स रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए कि भी 4 बैंक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, कौन सा पर्टिकुलर बैंक इन ऑपरेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस RS1 एंड RS2। दिस इज योर ओवरफ्लो फ्लैग, दैट इज नथिंग बट द सेम एज दैट ऑफ 8086 वाला जो फ्लैग था। दैट मीन्स इट इज हैड द इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ साइंड अर्थमेटिक। दैट मीन्स अगर दो साइन नंबर्स ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड इफ the sum cannot be accommodated in the destination location, then this flag, overflow flag, will set. For unsigned arithmetic, it has no significance. And parity is your same parity, that is of 885 or 886, that shows whether the number is of even parity or the number is of odd parity. This is a reserved flag bit which can be used for general purpose application depending on user to user. इसके अलावा 8051 में 4 और रजिस्टर्स होते हैं। दे आर नोन एज P0, P1, P2 एंड P3। These 4 registers P0, P1, P2, P3 are the registers corresponds to the 4 IO ports। जो 4 पोर्ट्स थे हमारे, हमने कहा था कि इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, तो वे जो 4 पोर्ट हैं उन 4 पोर्ट के कोर्सपोंड, हर एक पोर्ट के कोर्सपोंड एक हमारा 8 बिट का रजिस्टर है, जो P0 से लेकर के
0 P1 P2 P3 ये 4 होते हैं। और ये जो है वैसे यूज में नहीं आएंगे, जनरल पर्पज नहीं है। इसको हम जैसे हम ये नहीं कह सकते P0 के डाटा को P1 के डाटा के साथ मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दे आर नॉट जनरल पर्पज। ये स्टोरिंग के काम भी नहीं आते हैं किसी ऑपरेशन के दौरान। हाँ, जब पोर्ट से डाटा आ जा रहा है तो इनका यूज होता है। तो एक तरह से ये इंटरनल रजिस्टर्स है जो कि अवेलेबल है, राइट। सो दीज आर द 4 पोर्ट रजिस्टर्स ऑफ 8051। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में बाकी रजिस्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।